Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there are a lot of videos on this channel regarding banking, financial, and economic awareness, and all are placed in a playlist. Playlist link is available in description box. You can watch these videos and gain knowledge. So in this video, we will discuss one of the important aspects in banking, that is called asset quality. The asset quality relates to the assets of a bank. The bank prominently have loans and investment as their asset because these are the two type of activities that generate income for the bank. Interest income from loans, similarly, the from investment also they may earn the interest or they may realize the capital gain. So when we talk of asset quality, this is essentially the quality of loans and the quality of investment. So predominantly bank looks for the quality of loan. An entire loan portfolio is categorized under four categories as per RBI guidelines, and they are called standard, substandard, doubtful and loss. The loans that is classified as substandard, doubtful and loss are called non-performing assets. That means the non-performing assets are classified into further three subgroups, that is called substandard, doubtful and loss. And if we have to look at the asset quality of a bank, there are two important ratios that is looked into. One is called gross NPA in percentage terms. So gross NPA with reference to total loans in percentage terms is called gross NPA percentage. Similarly, net NPA to total loan is the net NPA percentage. So if this percentage is falling, that means the asset quality is good. If the percentage of gross NPA and net NPA is rising over period of time, that means asset quality is deteriorating. So lower is the percentage, better is the asset quality, because asset quality means the capacity of the bank to generate income. Non-performing assets, we cannot recognize the interest, and that's why they are treated as a non-performing asset. Non-performing means we are not able to realize the interest from these assets. Performing assets means from where the bank can realize the interest. So asset quality means the bank which has more, you can say, performing assets is having a better quality of assets. So similarly, what is gross NPA? What is net NPA? It is discussed in detail in our various videos. So watch the relevant video, you will understand. For current affair, I have suggested you two sources. The link of both the sources is available in description box. Click the link, you will land up on the app, download the app, take to current year plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. This is a Fair Cloud source. Very good source. You have daily, weekly, monthly PDF covered from that. Second good source is Smart Kida Current Affair Mock Drill. Link of that is also available in description box. Click the link, register, take current year plan and apply coupon code AA03 to avail 10% off. You can also buy this through Smart Kida app. You can download the app, select the current year plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. So current affair knowledge is very essential. Similarly, you must have the conceptual knowledge of various banking, insurance, banking, financial, and economic aspects. And all these are covered in our various videos. So watch all these videos and be knowledgeable. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एसेट क्वालिटीज का क्या अर्थ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर. जो बैंकिंग है उसके अंदर जो एसेट्स होते हैं उसका प्रीडोमिनेंट हिस्सा लोन्स और इन्वेस्टमेंट की शेप में होता है. लोन्स मीन्स जो पैसा हमने कर्ज में दिया है कस्टमर्स को, और इन्वेस्टमेंट है जो वेरियस डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, शेयर्स में या अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंतर्गत आती है. अब ये जो लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी क्वालिटी को असेस करने के लिए इसके अंदर वेरियस पैरामीटर्स लगाए जाते हैं, और असली जो एसेट क्वालिटी है वो लोन्स पोर्टफोलियो से ही
जज की जाती है और पूरे लोन पोर्टफोलियो को 4 सेगमेंट्स में बांटा जाता है आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार, और इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ये जो सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल एंड लॉस, ये एनपीए कैटेगरी में आते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको रिकमेंड की है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें वहां हमने इन सब चीज़ों को अलग से डिस्कस किया है। अब जो ग्रॉस एनपीए होता है, अगर उसका हम प्रतिशत निकालें टोटल लोन में से, तो उसको ग्रॉस एनपीए परसेंटेज टर्म्स में कहा जाता है। इसी तरह जो टोटल नेट एनपीए है, वो टोटल लोन का कितने परसेंट है, वो नेट एनपीए परसेंटेज कहलाता है। तो अगर ग्रॉस एनपीए परसेंटेज गिर रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम और नेट एनपीए परसेंटेज गिर रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको माना जाता है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। और अगर ये दोनों रेशियोज बढ़ रही हैं, ग्रॉस एनपीए बढ़ता जा रहा है, नेट एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं कि एसेट क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है, बिगड़ रही है। तो क्योंकि एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मींस वो एसेट जिनकी इनकम हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एज ए बैंक जिनकी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और कोई भी जो लोन दिया है बैंक ने या इन्वेस्टमेंट किया है, वो इसी इच्छा से किया है कि उस पर ब्याज आए। जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें कैपिटल गेन की भी इच्छा होती है और ब्याज की भी इच्छा होती है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा एसेट है जिसपे हम ब्याज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो नेचुरल है वो नॉन परफॉर्मिंग है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन है, उस पर अलग से वीडियो, उसको ध्यान से देखिए। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है, इस पर भी अलग से वीडियो है, उसको आप देखेंगे, समझ उसमें आएगा। तो एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए परसेंटेज टर्म्स में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एसेट क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है। और अगर ये घट रहा है, तो इसका मतलब एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। और इसी तरह की बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की इस चैनल पे उपलब्ध है, उनको देखिए। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंट अफेयर के लिए 2 सोर्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और करंट ईयर का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अफेयर क्लाउड का ये सोर्स है, बहुत शानदार सोर्स है, इसमें डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ आ जाएंगी, वहां से तैयारी करिए। दूसरा अच्छा सोर्स है स्मार्ट कीड़ा करंट अफेयर मॉक ड्रिल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, करंट ईयर का प्लान ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और करंट ईयर प्लान ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। बैंकिंग या किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए आपको करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ बैंकिंग इंटरव्यूज और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, उनको ध्यान से देखिए और नॉलेज गॉड ब्लेस यू।